Good morning for all my dear students. Standard 12th derivative of logarithmic function. If a questions may be the critical position that taking along. If a questions may be the function of function now taking along. Normal questions may be solved by the addition, subtraction, multiplication and division. As a derivative of parametric function. What is the parameters? Parametric क्या है? There are another solution for curve. किसी कर्व का किसी भी इक्वेशन का another solution रिगार्ड कर्व. For example, x square plus y square equal to a square. That is the parametric solution. X equal to a cos theta and y equal to b sin a sin. Okay? ये हमको पता है. Only one solution for circle. X equal to a cos theta, y equal to a sin theta. Substitute कर दो. A square cos square theta. A square sin square theta, a square common cos square theta plus sin square theta. Now a square equal to a square. That is the parameter. ये आपका पैरामीटर है. यहाँ पे हमें बस फंक्शन x and y में भी प्रेजेंस आ a cos theta, y equal to b sin theta. Find dy by dx. Where x is the derivative with respect to theta. अगर थीटा में है तो थीटा with respect to derivative. Y derivate with respect to theta. If parameters may be present of t variable, yes derivate with respect to t. तो first जो है u derivate dx by d theta minus a cos theta sin theta. Second, dy by d theta, a sin theta derivate cos theta. Find dy by ds. अब हमको dy by ds फाइंड आउट. तो dy by d theta अपॉन dx by d theta. ये हमारा फार्मूला है. dy by d theta फिर a cos theta अपॉन माइनस a sin theta. a की कैंसल माइनस बहुत ही आसान है. फर्स्ट डेरिवेट x विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, डेरिवेट y विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल. नाउ dy by dx, dy विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एंड dx विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल डिवाइड बाय ब्रैकेट का पैरामीटर, डेरिवेटिव ऑफ पैरामीटर. ओके. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. x इक्वल टू 80 स्क्वायर 280 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 80 पावर 4. a पावर 4. हियर with respect to t, first find out dx by dt 2a 2t t square derivate 2t dy by dt 4at cube 4at. Now use the formula 4at cube divided by 4at 4 4 cancel. Now t square. Similarly, you solve question number 1, 2, 3, 4. Simple way. Question number 5. Simple derivation. dx by d theta dy by d theta divide कर दो. x equal to cos theta minus cos theta.
where y equal to sin theta minus sin theta. With respect to theta, dx by d theta minus sin theta minus minus plus 2 sin 2 theta. dy by d theta cos theta minus 2 cos 2 theta. Derivate right over cos theta minus 2 cos 2 theta 2 sin 2 theta minus sin theta. That is the answer. Clear? Six में भी डेरिवेट dx by d theta dy by d theta divided. Question number 8. X equal to a cos t plus log tan t by x equal to a cos t plus log tan t by 2, where y equal to a sin. With respect to here t or theta, dx by dt a direct derivative minus sin t, okay, log x derivative 1 upon x tan t by 2, tan derivative sec square t by 2 and t by 2 derivative 1 by 2. Clear? Minus sin t, 2 common ले लो, tan t by 2 change of sin t by 2 upon cos t by 2. Here sec square come up, 1 sec theta equal to 1 by cos theta, cos square t by 2. Sec square को डिनोमिनेटर में दे दिया, तो here tan को sin by cos में कन्वर्ट कर दिया. a minus sin t plus 1 power cancel 2 sin t by 2 cos t by 2. You know the formula, sin x equal to 2 sin x by 2 cos x by 2. Okay, that is the change of sin t. इसमें चेंज हो जाएगा sin t minus sin t plus 1 upon sin t. Okay, पूरी वैल्यू sin t. a minus sin square t plus 1 upon sin t. 1 minus sin square t cos square t upon sin t. This is the value dx by dt. dy by dt a cos t. Okay, now dy by dx, dy by dt means a cos t upon a cos square t upon sin t मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा. a कैंसल, 1 पावर कैंसल, sin t upon cos t equal to tan t. Okay, now last question, the most important. Now last question, 11 number. x equal to a power
sin inverse t and y is equal to square root a power cos inverse t. ओके, सो दैट प्रूफ करना है लिखा हुआ माइनस वाई बाई एक्स. ओके, हियर यूज योर प्रॉपर्टी. अगर आप डायरेक्ट जो है dx बाई dt एंड dy बाई dt करेंगे तो आएगा, नो डाउट, ऐसा नहीं है. लेकिन इफ यू मल्टीप्लाई x इंटू वाई, a पावर साइन इनवर्स t इंटू मल्टीप्लाई किया a पावर cos इनवर्स t, a पावर साइन इनवर्स t प्लस सेम बेस पावर ऐड किया. एक फार्मूला आपने वेस्टर्न में पढ़ा था, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई. हियर t है, दैट इज a power pi by 2, that is a constant. Then divide, derivative, use multiplication, d by dx, x into y, d by dx, square root a power pi by 2, that also 0. Constant derivative. x dy by dx multiplication, dx dx1 0. Solve कर लो. dy by dx equal to minus y by x. Now, okay. यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों किया कि क्वेश्चन आसान हो जाएगा. x y को मल्टीप्लाई किया, a पावर साइन इनवर्स t cos इनवर्स t पाई बाई 2, इसलिए कांस्टेंट हो गया क्योंकि t तो रहा नहीं है. मल्टीप्लिकेशन को लगा के प्रूफ कर दिया. Two most important theorems may be find derivative of definition. First theorem, Rolle's theorem. हाँ, Rolle's क्या है? Rolle's का मैथमेटिशियन, मैथमेटिशियन इन्होंने डिफाइन किया कि फंक्शन इज डेरिवेटिव, उसकी क्या कंडीशन होगी. डेफिनेशन, अ फंक्शन f(s), a function f(s) is continuous in closed interval AB. मतलब कोई भी फंक्शन अगर कंटीन्यूअस है a एंड b इंटरवल में क्लोज्ड एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, now tangent of vertex parallel to x axis, x and x dash, y and y dash, here a, here b. If a curve may be the continuous a to b and differentiable, यहाँ ये नाम कर वर्टेक्स का जो टेंजेंट होगा वो मींस x एंड fc, तो where c belongs to x and y, और ये जो वर्टेक्स टेंजेंट है ये ऑलवेज पैरेलल टू, दैट इज ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ऑलवेज पैरेलल टू x एक्सिस, और जो c वैल्यू है वो x एंड y के बीच में होगा, नॉट x नॉट y. जिस पॉइंट पे टेंजेंट होगा मैक्सिमम पॉइंट, देन ए बी प्रेजेंस ऑफ a एंड b, नॉट a एंड नॉट. ओके, वर्किंग रूल क्या है इसका?
फंक्शन x बिलोंग्स टू ए बी। फर्स्ट रूल है एफ ए इक्वल टू एफ बी। अगर ऐसा है तो रोज वेरीफाई हो गया। रोज वेरीफाई मतलब जो वैल्यू ए की है वही वैल्यू बी की है, देन रोज वेरीफाई। सेकेंड, एफ डैश एक्स को 0 कर दो। नाउ x in place of c, f dash c equal to 0, c belongs to a। c किसके बीच में होना चाहिए? a। ओनली टू वर्क। फर्स्ट वर्क पहले आप चेक करो f a equal to f b, देन रोज वेरीफाई। f dash c equal to 0 मींस f dash x 0 करके x की जगह पे c और c की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो बिलोंग्स टू ओपन, not closed, not A, not B, between A and B. Okay? अब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको समझ आएगा। चलो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 5.7 इसके बाद करा देंगे क्योंकि वो छूट गया। ओके 5.8 तो सोचा खत्म हो गया, कोई बात नहीं, इसके बाद एक्सरसाइज 5.8 फर्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम से आते हैं। वेरीफाई रोज थ्योरम। एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 वेयर x बिलोंग्स टू -4 एंड 2। आपको फिगर नहीं बनाना है, बस आपको वेरीफाई करना है। दैट इज ए, दैट इज ए। वेरीफाई के लिए फर्स्ट आपको क्या वर्क करना है? एफ बी इक्वल टू एफ ए या एफ ए इक्वल टू एफ बी। फर्स्ट फाइंड एफ ए मींस -4 होल स्क्वायर 2 into -4 -8 तो 16 -8 8 to 0। सेकेंड फाइंड एफ 2 4 plus 4 minus 8 then f equal to fb means fb 0 equal to 0। अब then both value are different, not rows verify। तब अब सेकेंड स्टेप को वर्क नहीं करेंगे, 0 है यहाँ लिख रोज वेरीफाई। रोज क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। अब सेकेंड थिंग आपको क्या करना है? डेरिवेट करना है। f dash x 2x plus 2। ओके सेकेंड में हमने क्या लिखा था? f dash c equal to 0 मींस x in place of c 2c equal to 2c plus 2 equal to 0। बेटा c की वैल्यू क्या है? -1। अब -1 किससे बिलोंग करता है? ये देख लो -4 to 2 के बीच, -4 से 2 के बीच में -1 आएगा। -4 -3 -2 -1 0 1 2 आया। दैट c equal to -1 will be the tangent line parallel to the x axis to this curve। रोज में आपको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट ए बी चेक करना है, बराबर होगा तो रोज वेरीफाई, देन डेरिवेट x in place of c, फाइंड वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड f(x) equal to that is greatest integral function x belongs to 5 and 9। आप चेक करो f5 5 to 5
F9 9 to 9 means F5 not equal to F9, so not verify those two. Okay, second verify है F minus 2 equal to minus 2, F2 equal to 2, not verify those two. Third, Fs 1 equal to F1 equal to 0 and F2 equal to 3, not verify those two. Second thing, mean value theorem. जब जहां पर मीन वैल्यू थ्योरम लिखा हो उसके लिए फार्मूला है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी वेयर सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल इन बी। ये फार्मूला भी आपको सेट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन नॉट इक्वल टू होता है -5 वैल्यू 0। वेरीफाई दोस मीन वैल्यू थ्योरम लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा होगा fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इंटरवल ए भी दिया है वेयर ए की वैल्यू 1 and b equal to 4। मीन वैल्यू थ्योरम के लिए आपके पास एक ही फार्मूला है एफ बी माइनस एफ ए। तो फर्स्ट फाइंड आउट दैट इज ए दैट इज बी। एफ ए मींस एफ 1 minus 4 minus 3 means -6। एफ 4 16 minus 16 minus 3 that is -2। F B find out, B minus is already find out। F dash S 2x minus 4 means F dash C 2c minus 4। आप कुछ किया नहीं, फंक्शन में x के साथ -6 that is F A, ये किसके इक्वल है F A that is F B, B minus A 4 minus 1 3 f dash s 2x minus 4 x के साथ ही वैल्यू मिली। तो अब वैल्यू f b means -3 minus 6 4 minus 1 f dash c 2c minus 4 3 upon 3 2c minus 4 2c equal to 1 plus 4 c equal to 5 by 2 means 2.5 belongs to 1 and so close। Same question 4 5 fx given a equal to 1 b equal to 3 c belongs to 1 3। okay, solve by this method। Last topic now this chapter, second derivative, second order derivative। last topic है second order derivative means आपने फर्स्ट डेरिवेटिव किया उसे दो बार डेरिवेटिव करोगे। जैसे y इक्वल टू x पावर 5 प्लस x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। आपको इसको फर्स्ट डेरिवेटिव मींस dy बाई dx 5x पावर 4 2x प्लस 7 9 0, इसी को डबल डेरिवेटिव dy बाई dy
dx स्क्वायर 20x क्यूब सिक्स फर्स्ट डेरिवेटिव दूसरी बार डेरिवेटिव 20x क्यूब प्लस 2 दैट इज सेकंड टर्म। इफ क्वेश्चन इज रिपीटेड बाय y1 क्वेश्चन में लिखा होगा y1 या y डैश मींस dy by dx। ये कहीं कभी y1 लिखता है या y के ऊपर डैश दैट इज dy by dx। नाउ y2 या y डबल डैश दैट इज d2 by dx स्क्वायर। y3 या y ट्रिपल डैश दैट इज d2 by तो d2 क्यूब by dx। इसको तीसरी बार भी आप कर सकते हैं d2 by थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को बोलते हैं 60 x स्क्वायर टू कांस्टेंट 0। फोर्थ ऑर्डर भी कर सकते हैं n ऑर्डर भी हमारे पास है n ऑर्डर भी। तो योर टेक्स्ट बुक में भी प्रेजेंस ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मींस अ फंक्शन में बी द डेरिवेट फर्स्ट टाइम नाउ डेरिवेट फंक्शन विल डेरिवेट सेकंड टाइम इज कॉल्ड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आपको डेरिवेटिव आता है आप इसको कर सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। अब क्वेश्चन नंबर 11 तो थोड़ा क्लियर लगेगा काम। आपको उसी फंक्शन को दो बार डेरिवेट करना है 5 cos x minus 3 sin x। क्वेश्चन में लिखा है d2 y by dx स्क्वायर प्लस y सो करो। इट मींस क्या होगा y को दो बार d2 है सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव cos डेरिवेटिव माइनस होता है 5 sin x sin डेरिवेटिव cos x फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव minus 5 cos x positive negative positive 3 sin x। वैल्यू आप रख दो dy by dx के साथ minus 5 cos x plus 3 sin x y के साथ 5 cos x minus 3 sin x y here y 3 cancel 5 cancel 0। ओके y डेरिवेटिव 2 times। क्वेश्चन नंबर 13 y equal to 3 cos log x plus 4 sin log x। so that x square y plus x y प्लस अभी मैंने आपको बताया कि y1 मींस क्या है फर्स्ट डेरिवेटिव क्वेश्चन को फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे y2 मींस सेकंड डेरिवेटिव d2y by dx। ओके हम करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव dy by dx डायरेक्ट डेरिवेटिव -3 sin log x cos minus sin log x डेरिवेटिव 1 upon x plus 4 cos log x डेरिवेटिव 1 upon x। सेकेंड डेरिवेटिव में अगर आपके पास x डिनोमिनेटर में है तो डिवीजन रूल लगाना तो डिवीजन से क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन आसान है तो वेयर x इज डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय x dy by dx -3 sin log x plus 4 cos log x। लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लिकेशन रूल x dy by dx होल स्क्वायर मींस d2y by
dx स्क्वायर, x डेरिवेट 1 dy by dx, मल्टीप्लिकेशन x का डेरिवेट ले लिया dy by dx d2y by dx स्क्वायर प्लस dy by dx x डेरिवेट 1 -3 cos log x डेरिवेट x -4 sin log x upon x minus already 3 write down sin डेरिवेट cos log x log डेरिवेट 1 by x 4 cos डेरिवेट minus sin log x डेरिवेट 1 by x। अब बेटा देखो x मल्टीप्लाई करना x स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर प्लस x dy by dx माइनस कॉमन ले लो 3 cos log x प्लस 4 sin log x। अब देखो 3 cos log x प्लस 4 sin log x इक्वल टू y d2y by dx स्क्वायर इज y2 dy by dx means y1 that is minus 1 अरेंज कर दो प्लस y इक्वल टू 0। ओके 14 15 नाउ 16 एंड 17 लास्ट क्वेश्चन 17 में साफ कर देता हूं और बोथ से प्रोसेस। y equal to 17, y equal to tan inverse x whole square, so that x square plus 1 y2 plus 2x x square plus 1 y1 equal to 2। okay, फर्स्ट डेरिवेट dy by dx आप करोगे ऑलरेडी प्रूफ हो गया है 2 tan इनवर्स x देखिए फिर tan इनवर्स x 1 plus x स्क्वायर। सेकंड डेरिवेट में आप यहां डिवीजन को लगाना पड़ेगा आएगा इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो 1 plus x स्क्वायर dy by dx इक्वल टू 2 tan इनवर्स x y2 है दो बार डेरिवेट नाउ डिवीजन ओ मल्टीप्लिकेशन 1 plus x स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर प्लस dy by dx 1 plus x स्क्वायर डेरिवेट 2x 2 upon 1 plus x स्क्वायर। ओके 2 upon 1 plus x स्क्वायर 1 plus x स्क्वायर मल्टीप्लाई बहुत आसान है होल स्क्वायर y2 मींस y2 2x 1 plus x स्क्वायर y1 इक्वल टू 2। ओके चैप्टर 5 कंप्लीट फॉर ऑल एक्सरसाइज miscellaneous for all students who solve if any problems तो मैं आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको बताऊंगा। ओके